All right, so good morning, everyone. My name is Apoorv Tandon. I'm an undergraduate student at the Computer Science Department of IIT Kanpur. And today we're back with the second lecture of the chapter Limits and Derivatives on behalf of the Sathi platform. I hope you've gone through the questions that were assigned from NCRT in the previous lecture. I'd like to remind you that in the journey for JE, there's only so much that you can learn from someone, speaking to you, someone teaching you, verbally. And more than 80% of the effort is you going over the facts, going over the concepts in your mind and justifying every little detail to yourself. So with that, let's begin the second lecture. So having learned the seven indeterminate forms that we did in the first lecture, we're now ready for two important results. If we're given that the limit of f of x into g of x, where these are two real functions at C, if we're given that this limit exists, then there can only be three cases. One, that both is L and the limit of g of x goes to C, that curve is M, exists. That is that if we're given that the product of two functions limit exists at a point C, then one case can be, this is one case, that both limits individually exist as well. Another case can be that the first limit of f of x at C exists, whereas the limit of g of x at C does not exist. To justify this to yourself, I'll give you an example. You can try that out. Try to justify this to yourself that the limit of f of x at x is equal to 2. The limit of f at 2 exists, but the limit of g at 2 does not exist. Yet the limit of f into g at 2 exists. And the third case is that both limits f and g at the real number c do not exist. For example, if f is a piecewise function defined as 1 if x is a negative or zero number, and 2 if x is positive, and g also a piecewise function defined as 2 if x is equal to 0, and 1 if x is a positive real. So again, try to justify to yourself that neither limits f or g at x equal to 0 exist, yet the limit of the product of these two functions exists at x equal to 0. The second part of this result, for the product of two, for the addition of two functions, if it is given to us that the limit of the sum of two functions exists at the point C. There can be only two cases. Case one, continuing the same notation for the limit of f and g at x. Another way of expressing the first case is that we saw in the product of two functions that the existence of the product of limits, there can be a case where only one of the limits exists and the other does not exist at C. However, for the sum of two functions, it is if one of them exists, then the other has to exist. So that's why the double implication sign, which means that if and only if implication goes both ways. If L exists, M exists. If M exists, L exists. One of them cannot not exist. And case two, that both so these are the two cases for the limit of the sum of two functions. That if the limit of the sum exists at point C, either both the limits individually exist at point C or neither of them exist at point C. And this is also pretty intuitive because seeing that both of them do not exist, they might have some term that cancels out, which was causing the non-existence of limit. So these are the two results obtained from knowledge of the indeterminacy of certain limits,
And these results can be extended to the subtraction of two functions or the division of two functions, for example, by taking h of x is 1 over g of x and then applying the product theorem for the function f of x into h of x, which becomes the division f of x by g of x. So now I'd like to mention, one interesting fact about the indeterminate form 0 by 0, that all the other 6 indeterminate forms that we had listed in the first lecture can all be finally reduced to 0 by 0. So I'll be showing how they're reducible to 0 by 0. So 0 by 0 is sort of considered the standard indeterminate form. मतलब हमारे सारे indeterminate form इसी indeterminate form में लिखे जा सकते हैं. Considering 0 into infinity, आपको याद होगा कि अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है तो उसका इनवर्स 0 पे टेंड करता है, और हम जनरली 1 ओवर इन्फिनिटी के साथ डील करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करें तो 0 का पॉइंट तो हम ढूंढ सकते हैं, पर इन्फिनिटी का पॉइंट कभी ढूंढ नहीं सकते, वो एक पॉइंट नहीं होता. इसलिए 1 ओवर इन्फिनिटी अगर हो हमारे एक्सप्रेशंस में तो इट इज इजियर टू हैंडल. तो 0 into infinity can be written as 0 upon 1 over infinity, और आपको याद होगा 1 over infinity 0 पे टेंड करता है, 0 by 0 पे रिड्यूस हो जाता है. सिमिलरली infinity upon infinity भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म था. infinity 1 infinity 2 लिख लेते हैं कि ये दो फंक्शन इंडिविजुअली infinity पे टेंड कर रहे हैं. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1 over infinity 0 पे टेंड करता है और 1 over infinity 0 पे टेंड करता है. एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए लॉगरिथम लेना जरूरी हो जाता है. उनके लिमिट ढूंढने में भी लॉगरिथम लेना यूजफुल होता है. तो यहाँ पे लॉग लेते हुए लॉगरिथम का किसी भी पॉजिटिव नेचुरल बेस पर को लेते हुए ग्राफ प्लॉट करें तो आपको याद होगा कुछ ऐसे दिखता है. तो इन्फिनिटी पे तक जाते हुए लॉग भी इन्फिनिटी तक जाता है, और 0 into infinity आप देख सकते हैं 0 by 0 पे रिड्यूस. अगर हम y को 0 by 0 ले लें, फिर ये एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेट फॉर्म है. लॉगरिथम टेकिंग लॉगरिथम log 0 की वैल्यू इसी ग्राफ से ढूंढते हुए ये log to the base of some positive natural, और यहाँ पे x 0 पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर टेंड करती है. ये छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है. माइनस इन्फिनिटी वो नंबर है जो किसी भी नंबर से छोटा हो, जो भी नंबर आप सोच पा रहे हैं उससे भी छोटा हो. तो माइनस इन्फिनिटी लिखते हुए ये भी 0 by 0 पर रिड्यूस हो जाता है. log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, also equivalent to the indeterminate form 0 by 0. तो इस तरीके से हमारे सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 में रिड्यूस हो जाते हैं. अब हमने पहले लेक्चर में 0 by 0 फॉर्म वाले लिमिट्स को सॉल्व करना सीखा था. इस लेक्चर में हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से स्टार्ट करेंगे. तो सेकंड इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. अब हमने पहले बोर्ड पे देख लिया था कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 0 by 0 में रिड्यूस हो सकता है. तो अगर आपको दिख रहा हो कि किसी क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को 0 by 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहले लेक्चर वाले मेथड्स इसी फॉर्म या सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म पर अप्लाई हो सकते हैं. अब इन्फिनिटी की का थोड़ा इंट्यूशन लेने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. इवैल्यूएट द लिमिट x tends to infinity of log x. Natural log ले लीजिए, log base e of x by x. अब बिना किसी रिगरस मैथमेटिकल सॉल्यूशन के साथ अगर ये क्वेश्चन किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाए कि log x by x at x equal tending to infinity का लिमिट ढूंढना है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. log का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है.
और x का ग्राफ ऐसा दिखता है, y इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, x और log x के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब x अगर हम इंफिनिटी तक कभी पहुंच जाए या इंफिनिटी तक चलते जाए तो x log x से बड़ा होता जाएगा। तो मतलब x इज इंफिनिटली बिगर देन log x। मतलब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है जो x केवल log x से इतना बड़ा हो सकता है। जैसे x इंक्रीज करते जाए इंफिनिटी तक की तरफ बढ़ते जाए, x log x से बड़ा होता जाएगा। मतलब ये जो गैप है ये बड़ा होता जाएगा और फाइनली हम कह सकते हैं ये इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो मतलब x log x से इंफिनिटली बड़ा है, इसकी वैल्यू हम 0 लिख लेंगे। इसे सॉल्व करने के दूसरे भी मेथड्स होते हैं जो थोड़े ज्यादा सेटिस्फाइंग है, पर इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एग्जांपल काफी जरूरी होता है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अगर एक अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन हो, मतलब f of x by g of x और f and g are both algebraic expressions, तो उसे सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम होता है। पहले तो हमें क्वेश्चन को एक रैशनल फंक्शन में रिड्यूस करना है। सारे जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है, और नीचे भी सारे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है। एल्गोरिथम का दूसरा स्टेप, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में के x की हाईएस्ट पावर है, जो x लिमिटिंग वेरिएबल है जो लिमिट की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर x की हाईएस्ट पावर k है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को x की पावर k से डिवाइड करना है। ये रिजल्ट हमें पता है कि x किसी पॉजिटिव पावर को रेज्ड हो और कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो, अगर x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसी एल्गोरिथम का को एक फॉर्मूले की तरह लिखें, या देख सकते हैं कि अगर हर टर्म को x की पावर n जो हाईएस्ट पावर है, जहाँ x एक नेचुरल नंबर है और सारे a नॉट से लेके a n तक, b नॉट से लेके b n तक सारे रियल्स हैं जहाँ a नॉट और b नॉट नॉन जीरो है, ताकि इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री n हो। तो अगर हर टर्म को x की पावर n से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं a1 से लेके a n तक और b1 से लेके bn तक सारे कोएफिशिएंट वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, क्योंकि x की नॉन जीरो पावर डिनोमिनेटर में होगी। तो फाइनली हमारे पास a नॉट बाय b नॉट आएगा। ये रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, हर बार x की पावर n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो 0+ केवल राइट हैंड लिमिट क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो फंक्शन लॉगरिथम x है वो नेगेटिव x के लिए डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं किया जा सकता, इसलिए 0+ लिखा जाता है। और दूसरी चीज, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ये जरूरी नहीं कि जो वेरिएबल x की इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है वो केवल x ही हो। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनी फंक्शन, यहाँ पे अगर पूरे log x को हम y ले ले तो इसे लिख सकते हैं, आपको पता है जैसे जैसे x 0 की तरफ बढ़ता जाता है y जो log x है वो माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है। और ये थोड़ा सा ज्यादा फेमिलियर एक्सप्रेशन लग रहा है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। जैसे हमने पहले फॉर्मूला में देखा था, वाई स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो वाई स्क्वायर से हर टर्म को डिवाइड करते हुए हमें 3 मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, वाई स्क्वायर इन दोनों टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में y आएगा, सो 5/y 0 की तरफ टेंड करेगा, और 6/y स्क्वायर भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो आंसर 3 आता है।
अब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। इस पर्टिकुलर केस में सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n is equal to n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर। n tends to infinity n into n plus 1 by 4 square root of 4n power 8 plus 1। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आइडेंटिफाई करना कि n जो वेरिएबल इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो रूट के अंदर किसी भी एक्सप्रेशन के हाईएस्ट पावर को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर उस टर्म को बाहर ले लेंगे रूट से तो उसकी डिग्री हाफ हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं इस रूट के अंदर एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री 8 है, तो इस n की पावर 8 को बाहर ले आए तो n की पावर 4 बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर n की पावर 4 है। सिमिलरली न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट नहीं है, तो n की पावर हाईएस्ट पावर भी 4 है। अगर ये एक्सपांड करें n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 n स्क्वायर इनटू n स्क्वायर हाईएस्ट पावर n पावर 4 है। तो पूरा लिख लें n स्क्वायर n की पावर 4 को कॉमन लें, मतलब n की पावर 8 को स्क्वायर रूट के बाहर में n की पावर 4 बन जाता है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें तो n की पावर 4 से डिवाइड करना होगा। न्यूमरेटर में पहले टर्म जिसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा सब टर्म 0 हो जाएंगे अगर n की पावर 4 से डिवाइड करें, और डिनोमिनेटर में 4 बचता है और स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म 0 हो जाता है, ये टर्म बचता है, इसका स्क्वायर रूट ले तो 2 आता है, ये टर्म 0 हो जाएगा तो 1 by n पावर 8 0 हो जाएगा। इंफिनिटी पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 बनता है, n पावर 4 n पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 बच जाएगा, इसलिए आंसर इज 1/8। और जैसे 0/0 के लिए था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए भी लोपितल रूल यूज होता है। वो हम डेरिवेटिव सीखने के बाद सीखेंगे कैसे लोपितल रूल इन लिमिट्स के लिए अप्लाई हो सकता है। हमारा नेक्स्ट लिमिट है नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 into infinity। एक चीज सभी इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए कांस्टेंट रहती है कि हर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन से या लोपितल मेथड से उसे सॉल्व किया जा सकता है। पर हर इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए अलग मेथड्स भी होते हैं और उसी तरह हम 0 to infinity के भी देखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर x π/2 पे टेंड करे tan स्क्वायर x इंफिनिटी की तरफ जाता है और ये एक्सप्रेशन आप π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा, तो ये इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में है। अब जैसे ही ऐसा एक्सप्रेशन देखे जहां एक स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन दूसरे स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहला हमारा इंस्टिंक्ट होता है इसे रैशनलाइज करना, तो वही ट्राई करते हैं। तो इसे रैशनलाइज करने के लिए यही टर्म्स लिखेंगे, बस बीच में प्लस साइन डाल देंगे। न्यूमरेटर वाला टर्म इन दो बिना स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन का डिफरेंस होगा, तो वो लिखते हुए इस टर्म से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, स्क्वायर रूट हट जाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे आपको याद होगा 0 into infinity सॉल्व करने के लिए हम यहाँ 0/0 या infinity by infinity फॉर्म में लिखते हैं। इस tan square x में the term causing
ये टेंडेंसी टू इन्फिनिटी है cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में जो 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए tan स्क्वायर x को एक्सपैंड करते हुए sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x लिखना शायद हेल्पफुल हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हुए तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू पाई बाय 2 में न्यूमरेटर वाला टर्म 0 की तरफ बढ़ रहा है और ये भी डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 की तरफ बढ़ रहा है। sin स्क्वायर x और ये वाला डिनोमिनेटर इंडिटरमिनेट c की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x की वैल्यू x इक्वल टू पाई बाय 2 पे 1 की तरफ बढ़ रही है जो इंडिटरमिनेंसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x और यहाँ न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं और इस डिनोमिनेटर वाला टर्म जो ये एक्सप्रेशन है इसे इसमें पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करने में रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 9 जो 6 आता है जो फिर से कांस्टेंट है, इंडिटरमिनेंसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं sin x में पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करते हुए sin x 1 हो जाता है तो रूट ओवर 9 प्लस रूट ओवर 9 6। अब जैसे आपको याद होगा फैक्टराइजेशन मेथड में 0 बाय 0 फॉर्म में यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं जो इंडिटरमिनेंसी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 बाहर लेने से sin स्क्वायर x -1 बन जाता है, मतलब -1 यहाँ ले लें तो ये sin स्क्वायर x -1 बन जाता है। sin स्क्वायर x -1 की फैक्टराइजेशन sin x -1 इंटू sin x + 1 होती है और यही sin x -1 टर्म जो 0 बन जा रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो दिख रहा है कि कैंसिल हो जाता है। और फाइनली फिर से x इक्वल टू पाई बाय 2 सारे रिमेनिंग टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने से आंसर 1/12 आता है। तो 0 बाय इंफिनिटी का एज सच कोई अलग मेथड नहीं होता, उसका स्पेसिफिक मेथड इट इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेप इन सॉल्विंग लिमिट्स ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। हमारा फोर्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक रैशनलाइजेशन के लिए हमें एक बिना रूट्स के एक फ्रैक्शन बनाना है f of x by g of x के फॉर्म में और फिर से 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले मेथड लगाने। तो आप देख सकते हैं x इंफिनिटी की तरफ टेंड करे तो उसे सब्स्टिट्यूट करते हुए इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट है कि इस टर्म को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करते हुए रैशनलाइज करने का मेथड होता है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय द रूट एक्सप्रेशन। तो इन दोनों टर्म्स और इस टर्म को सब कर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सी होगा x प्लस सी माइनस एक्स सी। अब ये इंफिनिटी वाले इंटीग्रल उसका एल्गोरिथम होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर से डिवाइड करना। तो और स्क्वायर रूट के बाहर ले जाए वो x की पावर 1/2 हो जाएगी
सिमिलरली रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स में एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, उसे बाहर ले जाए, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। इस स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन में एक चीज ध्यान रखना कि बाहर ले जाते हैं तो उसका मॉड्यूलस बन जाता है। मतलब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे बाहर ले जाए तो मॉड्यूलस लगाना पड़ता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर के लिए अब मॉड्यूलस की टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं और रिमेनिंग टर्म्स में न्यूमरेटर में 1 आता है, डिनोमिनेटर में ये टर्म 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये √1 प्लस √1 2 है और आंसर 1/2 और सी भी था C/2। अब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव होता है। अगर m और n 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और a0 b0 कोई रियल नंबर्स हैं जो नॉन जीरो हैं, तो लिमिट अगर इस रैशनल एक्सप्रेशन का लिमिट लिया जाए जब x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो अलग केस तो हमने इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म वाले एल्गोरिथम में देखा था, अगर हाईएस्ट पावर हो और उनके कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो करना है और फाइनली a0 बाय b0 हमारा आंसर आता है। अगर न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर m डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर n से कम हो, अगर m n से कम हो, मतलब x की पावर n से हर टर्म को हम डिवाइड करें, x की पावर n जो बड़ा पावर है उससे हर टर्म को डिवाइड करें, तो न्यूमरेटर में हर एक टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। न्यूमरेटर का बिगेस्ट टर्म a0 x की पावर m है, उसे ही x की पावर n से डिवाइड करें, x की पावर m माइनस n एक x की पावर नेगेटिव पावर होगी और x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो a0 बाय x की पावर n माइनस m आएगा, वो 0 की तरफ जाएगा और उसके बाद हर एक टर्म भी उससे छोटा होगा और 0 की तरफ बढ़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर का हर एक टर्म 0 है और डिनोमिनेटर का एक टर्म b0 कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि x की पावर n से डिवाइड करें तो केवल b0 बचता है, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। अगर न्यूमरेटर का टर्म हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से ज्यादा हो और इस कंडीशन का मतलब यह है कि a0 और b0 का साइन सेम हो, या तो वो बोथ नेगेटिव हो या दोनों वो पॉजिटिव हो, तो इस ये पूरा लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है कि न्यूमरेटर का x के टर्म्स में हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की x के टर्म्स में हाईएस्ट पावर से बड़ा हो, x m इज ग्रेटर देन n और हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स का साइन सेम हो, तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है। अगर न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से ज्यादा और हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स अलग साइन के हो, मतलब उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो, तो एक्सप्रेशन माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो इसी रिजल्ट पे
IIT जेईई में 2012 में एक क्वेश्चन आया था। तो अब आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अगर इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो पहले टर्म में न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से हायर है, मतलब ये पूरा टर्म इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। और ये टर्म अगर माइनस को बाहर ले लें तो ये माइनस ए एच प्लस बी आ जाता है, ये पूरा टर्म भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में। और पिछले रिजल्ट से अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म किसी स्केलर के इक्वल हो रहा है, मतलब इसे हम किसी रैशनल फॉर्म में लिखें एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और वो कोई स्केलर आ रहा है, वो कोई कांस्टेंट आ रहा है, नॉन जीरो कांस्टेंट, उसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर इक्वल है। तो इसे पहले हमें एलसीएम लेके इसे पहले रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ऑफ x प्लस वन, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में वन है, इन दोनों का एलसीएम x प्लस वन होता है। तो सेकंड टर्म से वो एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन आता है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आ गया है। इस एक्सप्रेशन को अगर इंफिनिटी पर एक कांस्टेंट के बराबर करना है हमें, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर सेम होगी, मतलब m इज इक्वल टू n वाला केस। तो एक इस x की लाइक पावर्स को क्लब करते हुए हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस a प्लस x इंटू 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस a माइनस b है, और कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट b है माइनस b, और डिनोमिनेटर प्लस 1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में x के हर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे हाथ में है। हम a और b को वेरी करेंगे, x स्क्वायर x के कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में x के कोएफिशिएंट, x के पावर के कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 1 है, केवल लिनियर एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पर अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कांस्टेंट के बराबर करना चाहते हैं, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें 0 करनी होगी, ताकि ये पूरा टर्म मिट जाए और हम लिनियर बाय लिनियर के फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन रह जाए। तो इसका मतलब अगर इसकी कोएफिशिएंट को 0 करना है, a की वैल्यू 1 करनी होगी, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 1 है, तो ये पूरा टर्म, अगर a की वैल्यू 1 है तो ये पूरा टर्म मिट जाता है। और अगर हम रिमेनिंग टर्म्स में x की पावर 1, जो x की हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, x की पावर 1 से डिवाइड करें, तो अब x बाय x 1 होता है, तो और बाकी टर्म कोई स्केलर बाय x है, जब x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो उन दोनों कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमारा लिमिट आता है 1 माइनस a माइनस b, a की वैल्यू 1 है, इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बाय 1 माइनस b, सॉरी माइनस b, तो हमारा लिमिट आता है माइनस b। दिया गया है कि लिमिट की वैल्यू 4 है, तो माइनस b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू
-2। तो ए और बी की वैल्यूज हमने इवैल्यूएट कर ली। पिछले रिजल्ट को यूज करते हुए अगर इसी क्वेश्चन में 4 की जगह 0 दिया होता तो हमें समझना होता कि डिनोमिनेटर के x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से बड़ी थी। अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दिया होता तो न्यूमरेटर की पावर x की पावर न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी होती, और हमें प्लस और माइनस इन्फिनिटी के मुताबिक a नॉट और b नॉट की वैल्यूज भी चेक करनी होती। हमारा अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी है। 1 पावर इन्फिनिटी वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले लिमिट को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। इसे याद रखने का तरीका एक ही होता है कि बार बार इसी मॉडल के प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएं, अपने मन में वही फॉर्मूला कहते जाएं। किसी पॉइंट के बाद वो फॉर्मूला आसान लगने लगेगा और आपको याद हो जाएगा। अगर हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दी गई हो और उसका ए पे लिमिट निकालना है, जहां की जो एक्सपोनेंट के अंदर वाला टर्म है वो 1 की तरफ जा रहा है और जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 पावर इन्फिनिटी वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म के बराबर आ रहा है। तो इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है ई लिमिट ई ऑयलर्स नंबर की पावर लिमिट x टेंड टू a g of x एक्सपोनेंट वाला टर्म। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि limit of f of x power g of x as x tends to a, where f of x tends to 1 and g of x tends to infinity is equal to Euler's number e की पावर लिमिट ऑफ g of x into f of x minus 1। ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और एक्सपोनेंट को ऐसे ही लिख देना है, उसका लिमिट एज x टेंड्स टू। तो इसके एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा सवाल, limit x tending to infinity upon x power x। अब ये हम देख सकते हैं इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करें 2 upon x 0 की तरफ बढ़ रहा है, x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये 1 पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। यही फॉर्मूला लगाते हुए e की पावर लिमिट as x tends to infinity f of x, ये पूरा टर्म f of x और ये जो टर्म है एक्सपोनेंट में ये g of x। अब f of x इस फॉर्मूले में f of x से 1 निकालना है, f of x से 1 निकाल दे तो क्या बचता है 2 over x। और g of x को ऐसे ही लिख देना है, तो g of x into g of x जो x है। अब x x कैंसिल हो जाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की वैल्यू बस 2 ही होती है, तो इस लिमिट का वैल्यू e स्क्वायर। इसी सवाल से कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं जो आप या ध्यान में रख सकते हैं, बार बार ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पहला रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 over x whole power x is equal to e। लेकिन अगर इसमें कोई स्केलर इंट्रोड्यूस कर लें, अगर कोई रियल नंबर लैम्डा सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसकी लिमिट इवैल्यूएट होती है e पावर लैम्डा। तो इसी तरीके से अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है 1 plus x into की पावर 1 over x, फिर से e आती है ऑयलर्स नंबर से।
इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। मोस्ट प्रॉब्लम्स के लिए हम 2 लेस देन e लेस देन 3 लेते हैं, कभी कभी ये अप्रोक्सीमेशन काम आ जाती है। और चौथा Euler's number to the power of lambda, where lambda is a real number। तो इन सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के मेथड ऑफ सॉल्विंग द लिमिट्स हमने देख लिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हिच इज कॉल्ड द सैंडविच थ्योरम। इसे कभी कभी स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। तो आपको याद होगा कि लिमिट्स के रिजल्ट्स में एक रिजल्ट था कि इफ f of x less than g of x for all x belonging to some delta neighborhood of a except possibly at a itself। मतलब आपको याद होगा कि अगर हम x की तरफ बढ़ता हुआ कोई लिमिट लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन a पे डिफाइंड हो, और अगर डिफाइंड भी हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू a पर लिमिट के बराबर हो। तो हम a को जनरली उसके नेबरहुड से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डेल्टा नेबरहुड ऑफ a एक्सेप्ट पॉसिबली एक्सक्लूडिंग a, अगर f of x g of x से कम हो हमेशा इसके आसपास वाली जगह में, देन इनइक्वालिटी इज प्रिजर्व्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। मतलब इसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल लेस देन ही रहता है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो ये ग्रेटर देन ही रहता। ए जहां ए वो पॉइंट है जिसके आसपास वाला नेबरहुड में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही। तो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम तब अप्लाई करते हैं हम जब हमारे पास कोई ऐसा लिमिट हो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको सॉल्व करने का एग्जैक्ट तरीका हमें नहीं पता हो, पर अगर वो एक्सप्रेशन h of x है जिसका लिमिट हमें ढूंढना है, हमें दो ऐसे फंक्शन पता है, हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे x हमें पता है, x स्क्वायर हमें पता है, तो हम जानते हैं कि 1 से ग्रेटर सभी नंबर पे x स्क्वायर x से बड़ा होता है। तो h of x हम एक ऐसा फंक्शन जानते हैं जो h of x से बड़ा हो, और हम एक ऐसा भी फंक्शन जानते हैं जो h of x से हमेशा हमेशा छोटा हो। तो इस केस में हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं, और अगर इन दोनों फंक्शंस जो h of x के आगे पीछे हमें मिल रहे हैं, इन दोनों फंक्शन के वैल्यू एक ही लिमिट पर टेंड करती है, मतलब अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन पर लिमिट अप्लाई कर दें, इन दोनों लिमिट्स की वैल्यू सेम आती है, तो हम डिड्यूस कर सकते हैं कि बीच वाले फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी वही होगी। तो वो सैंडविच थ्योरम कहलाता है। इसी का ग्राफिकल इंटुएशन लें। f of x कोई ऐसा फंक्शन है, जरूरी नहीं कि a पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, तो मैं एक एम्प्टी सर्कल बना देता हूँ a पे, शायद a पे डिफाइंड नहीं, पर a के आसपास वाले सभी पॉइंट्स में या a के नेबरहुड के सभी पॉइंट्स में f of x डिफाइंड है। और एक और फंक्शन और हम जानते हैं कि a के नेबरहुड में शायद g of x भी a पर डिफाइंड नहीं है, अगर डिफाइंड है तो ये उसकी वैल्यू कहीं भी हो सकती है। we don't care what the value of g of x or f of x at a is। तो हमें ये जानकारी है कि f of x g of x से छोटा है डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, मतलब a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के बीच के हर पॉइंट पर g of x f of x से बड़ा है। हमें हमारे पास ये जानकारी है, और हमें अगर एक ऐसा फंक्शन मिल जाए h of x से बड़ा है और g of x से छोटा है, मतलब इसी एक्सप्रेशन को हम लिख पाए h of x। अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो इन दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच हो रहा है, जो स्क्वीज हो रहा है, और हमें यह भी पता है कि a पॉइंट पर अगर x a की तरफ बढ़ता जा रहा है तो f of x और g of x की लिमिट सेम आती है।
तो एच ऑफ एक्स की लिमिट भी वही वैल्यू आएगी। तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हुए लेट एच बी फंक्शन such that st का मतलब such that f of x is equal to f of x is equal to g of x where x is the डिलीटेड नेबरहुड का यही मतलब है कि एक के आसपास हर पॉइंट पर एक के अलावा मतलब एक को उस नेबरहुड में इंक्लूड करना जरूरी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं इन द डिलीटेड नेबरहुड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए देन if tends to a and x tends to a एल के बराबर आ रहा है ये दो मतलब then x tends to a h of x का वैल्यू भी वही लिमिट है। तो सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक सवाल इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसी इनइक्वालिटी दी गई है जिनमें तीन टर्म्स का इनइक्वालिटी दिया गया हो, तीन टर्म्स का कंपैरिजन दिया है। तो हमारी इंट्यूशन कहती है कि इस क्वेश्चन में सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम अप्लाई होगा। तो अप्लाई करते हुए हमें ये पता है कि log x 0 और रूट x के बीच में लाई करता है जहां x ग्रेटर देन 1 है, और हमें पता है हम केवल x ग्रेटर देन 1 के पॉइंट से डील कर रहे हैं क्योंकि x इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है और इंफिनिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो मतलब हम इसी डोमेन में हैं, हम ये मान सकते हैं कि हम केवल x ग्रेटर देन 1 पॉइंट्स वाले टर्म्स ही कंसिडर कर रहे हैं। तो हम उस डोमेन के लिए ये इनइक्वालिटी सारे पॉइंट्स के लिए लिख सकते हैं जब x इंफिनिटी के आसपास हो और हमें पता है कि x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब x पॉजिटिव है और पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस इनइक्वालिटी में हर एक टर्म को एक पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के साइंस प्रिजर्व रहते हैं और वो पॉजिटिव टर्म नॉन जीरो भी है। और इस पूरे टर्म को मैं f of x ले रहा हूँ, रूट x बाय x की वैल्यू 1 बाय रूट x होती है। अब इन तीनों टर्म्स पे x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला लिमिट लगा लूं मैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x then equal to limit tends to infinity 1 by infinity। ध्यान दीजिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी फंक्शंस के बीच में, लिमिट जब लगाते हैं तो ये स्लैक इनइक्वालिटी बन जाती है क्योंकि दो फंक्शन जो कभी इक्वल नहीं होते उनके लिमिट इक्वल हो सकते हैं। तो इसलिए स्लैक इनइक्वालिटी आ जाती है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले फंक्शन के लिमिट की वैल्यू 0 है, फाइनल फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी 0 है क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 है, न्यूमरेटर में x की पावर 0 है। तो इसलिए 1 बाय रूट x 0 की तरफ बढ़ता है, वैल्यू 0। और सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x greater than x minus 1 but less than equal to x। तो ये आप सोच सकते हैं ये इनइक्वालिटी ट्रू क्यों है, पर अभी आप याद रखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is always less than equal to x but greater than x minus 1।
तो इसी इनइक्वालिटी से आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए. लिमिट x tends to infinity, sigma k is equal to 1 to n greatest integer of x by n square. इसका आंसर है x over 2. तो आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.